Welcome you all here in this program of Mission Shakti, Phase 4. जैसे चल रहा है इस रुकना है तो इसी Topic को is करवाना gender equality and health. मतलब पॉज होगा Mission Shakti was launched by Honorable Chief Minister Yogi Adityanath on 17 September 2020 for ensuring the safety and dignity of women and girls. It is my pleasure to walk you through the program and introduce you to the speakers. Now I request Dr. Upma Chandra Sethi, Professor Arun Sethi, Professor Madhurima Lal, Professor Arun Sethi to come on stage and take this. इसे सेट करते हैं मालिश कर पढ़ाते नहीं करिए भारतीय परंपरा को निभाते हुए मैं अपने सम्मानित अतिथियों से और आदरणीय शिक्षक से ये निवेदन करती हूँ कि वे लैंप जला करके कैमरे के सामने आप हैं उसको बीच में रखना पक्का चला पक्का चला Now I request Dr. Indu Saxena to give plant to Madam. Now I request Dr. Sangeeta Shrivastava to give the plant to Madam Professor Madhurima Lal. करके वो भी नहीं दिया करके ना Without taking much of your time, I would like to thank you all for being present here. On behalf of the Nation Department, I'd like to welcome all students, teachers, professors, especially Madam Madhurima Lal, the coordinator of this Mission Shakti, and she has to create Shakti in itself. इतने सारे प्रोग्राम यहाँ के program she is conducting every day. So this shows a real Shakti in itself. Next, second and foremost speaker of the day, Dr. Upma Chaturvedi. She was active principal of our degree college for a number of years. और उन्होंने उसको काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुँचा दिया है. And also she is
teacher in geography also. She teaches the regular classes in geography. And जो तीसरा हमारा एक पार्टी गेस्ट है वो अभी आने में उनको कुछ समय है, रास्ते में है, जैसे ही आते हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. शी इज अंजलि सोनी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ के राजकीय निर्माण निगम, और इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे है. उनका आज जेडीयू की मीटिंग कर गई है, तो शी अनएबल टू कम बट शी स्टिल ऑन द वे. और उनकी इम्पोर्टेंस हम बता सकते हैं कि जो भी होगा रिटायर होगा उनके पास मिल जाए. जिसको भी रिटायर होगा, सर्विस होगा, मैडम के पास जरूर जाए. अमृता. थैंक यू सर. अब मैं अपने बच्चों को, थोड़ा बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट आस्था श्रीवास्तव कम टू द डेस्क. He called me and said that you have to give lecture on this topic. Sometimes I was feeling that it is inborn in all of us, all the women. We know what we are getting and what we are not getting. So I don't have to prepare, but actually because I was coming to the university, I had to address all of you, and this university itself is full of eminent professors and learned people. So I have to be very careful. I never wanted to speak something which is not related to the topic. But just how I heard Astha and Pradeep and Anjali, they spoke so well and covered almost everything which I wanted to say. I wanted to start my speech with reading the preamble, and I will do so. Because what I feel that our Constitution's preamble covers everything whatever we want to. And I'm just reading it again. Nobody remembers it by heart because we never tried to learn it. And we never thought that it is there is any necessity to learning these particular aspects. But at the present time, after so many years of independence, 75 years of independence, still we have to think about our rights, about our position, about our actual laws and everything, about acts, about articles. So I am just reading it for all of you, and I request all of you to please stand up. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all, patenting, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. Thank you so much. So when we are saying we the people of India, it covers everything. All the strata, all genders, everybody. So why after so many years still we are talking about these things, about the upliftment of women, about the security, safety, nutrition, hygiene and health. We are talking, that is the saddest part. That is the saddest part, that we are still talking. We are still talking about dowry deaths. We are still talking about girl child fetal mortality rate. We are still talking about safety and security. So the government is taking a lot of good initiative. A lot of things are happening all around us. But the basic thing what we have to change is ourselves, like me and you.
quote: "If we educate a woman, we educate. If we educate a man, we educate a man. And if we educate a woman, we educate a society or a family or a country or a nation." So, but what I have learned and what I have felt, that education doesn't change mindset. Education has nothing to do with hygiene, health, nutrition, sensitivity, proper thoughts. It has nothing to do. I have seen my support staff, she is with me since 22 years, she has better thought processes than many of the professors and many of the lecturers and many of the society members. The way she thought, the way she thinks, the way she speaks, and the way she communicates, it's more powerful than any of us. So I learned a lot of things from her. She is not educated. She knows she has only 2 children. मतलब उनकी बेटी थी, उनकी डेथ हो गई, उनका एक बेटा था. She planned this so many years ago, and she said, "No, I never wanted more than 2 children." She is supporting her son completely, and now the son has 8-9 children, and she's feeling so sad. She is so irritated and actually she keeps saying, "I don't know why." I said, "Why he has or she has, your bahu has not learned something to you?" So this is what we feel, that education has nothing to do with your upbringing, your background, your thought process, nothing. आप ये सोचें कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बहुत अच्छी बात बोलेगा और बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, जरूरी नहीं. आप अगर ये सोचें that a woman is going to support a woman, it is not necessary. Most of us, we face challenges because of women. Features like dowries. Who is asking for it? Men are asking for it. Husbands are asking. Sons are asking. No. Mother-in-laws are asking. Who is killing the girl child? Who is killing the girl child? मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कोई कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता, लेकिन मारती है. और महिलाएं क्यों करती हैं? अब आप कहेंगे बेचारी है वो, बेचारा उनको करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, उनको डाउरी लेनी पड़ती है, बेचारी. क्यों बेचारी भाई? आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने क्लास में, अपने कॉलेज में हर बार ये कहते हैं, अपने जब भी हम अपने बच्चों को एड्रेस करते हैं तो हम ये कहते हैं, प्लीज अगर डाउरी मांगी जाती है तो शादी मत करिए. यू आर नॉट प्रॉपर्टी, सेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है आप. आपको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता. और men, boys, I request all of you, आप इस काबिल बनिए कि अपने को खुद अपने पैसे से खड़ा कर सकें, ना कि अपनी बीवी के पापा के पैसे से. आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपना आपकी वाइफ का सपोर्ट कर सके. एंड गर्ल्स, you are born to support your family. You are born to be with your husband, born to be with your father. Because I have heard that now girls are also demanding and asking for many things. I don't know how, why. बच्चियों की मैंने सुना कि बच्चियां कहती मुझे ये चाहिए, शादी के टाइम मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए. ये क्या तरीका है भाई? आपके माता पिता ने आपको खाना दिया, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया, आपको कपड़े दे रहे हैं, आपको शेल्टर दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं. सब कुछ दे दिया, आप नौकरी भी कर ली, अब करिए अपने लिए जो करना है. I started working at the age of class 10. During summer vacation, I used to earn because I was very fond of nail polish and small things. So I said, no, I will not ask for these. तब 10 रुपए की nail polish आती थी. मैं एक महीने में 100 रुपए अर्न करती थी और उससे उन 100 रुपयों में से मुझे जो भी अपने लिए लेना होता था, इस तरह की लग्जरीज वो खुद अर्न करती थी और तब लेती थी. I never asked my father. My father was giving me shelter, food, clothes, education, everything he was providing me. But one thing I want to tell you, when my daughter was born, my in-laws were not happy. When I was born, family was not happy. So I was born in 1968, 54 years almost. पहले पैदा हुई तब भी लोग खुश नहीं थे. मेरी बेटी पैदा हुई 99, तब भी लोग खुश नहीं थे. तो ये खुशी कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता. और एक्सपेक्टेशन बहुत होती है डॉटर से, फिर डॉटर इन लॉ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है जेंडर इक्वालिटी के बाद
फिर आर्टिकल्स कहते हैं, आई हैव जस्ट नोटेड डाउन दीज आर्टिकल्स एंड आर्टिकल 14, 15, 39, 42, 46, 47, 51 and 243. All of these articles, they talk about gender equality and empowerment of women. And it was written in which year? 75 years ago it was written. Then we are talking about Sustainable Goal 5. In that we are talking about gender equality and many other things. Then there are many gender equality index. आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है, बॉयज को भी कहते हैं हम गर्ल्स को भी कहते हैं, कितने लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है, महिलाओं को स्पेशली, गर्ल्स को स्पेशली या बॉयज को भी, because you have sister, you have mother, you are going to have wife also soon. So all of you should know what are the legal rights of a woman. आप सब लोग जब अपने बारे में, आपको क्यों सताया जाता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप सताई जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आपको कहते हैं मर ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अगर हमको नहीं बाहर निकलने जाने दिया जा रहा है तो ये हमारी सेफ्टी की वजह से नहीं है जाने दिया जा रहा है। लेकिन हर वो काम आपका भाई कर रहा है जो आप करना चाहती हैं, लेकिन आपको नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि आप एक बच्चा, एक लड़की हैं। बहुत सैड है ये, लेकिन ऐसा ही है। फिर लोग कहते हैं, मेल मेंबर्स स्पेशली कहते हैं कि अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत बढ़िया, महिलाएं बहुत आउटस्पोकन हो गई हैं, फाइटर हैं और बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर आप जाके देखें, गांव में अगर जाके देखें और अगर आप सच्चाई जानने की कोशिश करें, बड़े बड़े घरों में जाके देखने की कोशिश करें तो आपको असलियत पता चलेगी। डिसीजन मेकर्स वो नहीं होती, उनको अपने डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिद करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है, रूठना पड़ता है, नाराज होना पड़ता है, बहुत टैंट्रम करने पड़ते हैं, तो उनकी कोई चीज़ मान ली जाती है तो बहुत खुश हो जाती हैं कि हाँ मैंने, मेरा काम हो गया। और हस्बैंड भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने देखे कर दिया, आपको जो चाहिए। लेकिन क्यों कहना, मतलब ये कहते हैं ना कि एक किसी भी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, सबको मिलके चलना। तो डिसीजन मेकर जहाँ तक होता है वहाँ तक उसमें भी आपका एक रोल होना चाहिए। आप लोग भी माँ बनने वाले हैं, आप लोग भी मदर इन लॉज बनेंगे, तो अपने साथ जितनी भी आपकी महिलाएं हैं उनको एम्पावर करिए। वर्क प्लेस पे भी अपने वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे काफ़ी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और मैंने बड़ी स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स देखी हैं। किसी महिला को अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो आपको पसंद नहीं करेंगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नहीं लाइक करेंगे, तो और वो महिलाएं होंगी। तो ये चीज़ें जो आपको, जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को अपनी थॉट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जो हम जेंडर इक्वालिटी की इसमें जो इंडेक्सेस है उसमें हम कुछ लेके लाए थे, वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। GDI है जेंडर रिलेटेड जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GM है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, GEI इक्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इन इंडिया। ये सारी चीज़ें कवर करती हैं हेल्थ, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डाउरी, सेफ्टी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इन सबको कवर करती है। फिर आपने यूनिसेफ के बहुत अच्छे प्रोग्राम सुने होंगे, वॉश के बारे में सुना होगा। आप लोगों से कितने लोग वॉश के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वॉश के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ किताब पढ़ के पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और आजकल कागज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो पेपर आपके पूरे होने चाहिए, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। वॉश एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इसके बारे में बात करते हैं, विमेन के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन में, उसके बारे में भी उसने बताया, एक बच्चे ने बोला। तो मैं आपको बता दूं, मैं when I was appointed as principal in 2014, I never knew, मुझे ये मीडिया से और प्रेस से पता चला कि I was the first principal to install sanitary napkin में vending machine in the college in उत्तर प्रदेश। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं पहले, मुझे ये प्रेस ने बताया कि
आप और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, और अगर आप और वीडियो यूट्यूब चैनल पे टाइप करेंगे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, तो उसमें मेरे कॉलेज का वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। वो 2014 में मैंने, ये मूवी वगैरह तो अब आई है जो आप लोग देख रहे हैं, तो वो एक बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप 5 रुपये का कॉइन उसमें डालते हैं और आपको उसको आप 5 रुपये का कॉइन डालेंगे और उसमें 2 सैनिटरी नैपकिन आपको मिल जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड अभी भी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सब बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की मैं थोड़ा कम करती हूँ इसको, मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी तीनों बच्चों ने काफ़ी कह दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के बारे में, वर्किंग विमेन पोस्टल के बारे में, वन स्टॉप सेंटर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और प्लीज़ नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। वुमेन हेल्पलाइन के बारे में, महिला ई हार्ट के बारे में, पिंक बसेस के बारे में, महिला वॉलंटियर्स के बारे में, STEP सपोर्ट टू टर्मिनेटिंग ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, ये सारे इन सब चीज़ों के लिए लॉज हैं, वो सब आप सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आपको अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन हम और आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और बच्चियाँ जब वो हमारी जैसी जो महिलाएं हैं उनको अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत साथ में खड़े होने की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके से मुझे लगता है जब कोई बहू परेशान होती है या कोई बेटी परेशान होती है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसको एक माँ परेशान कर रही होती है। और जो बॉयज़ हैं, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो सबसे पहले हमको मेल कॉलेजेस में जाना चाहिए और वहाँ बताना चाहिए कि आपको कभी भी किसी का सबसे एक और आपको बताएं, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी शेम करना। बॉडी शेम जानते हैं आप लोग क्या होता है? आप लोग में से कोई खड़े होकर बताएगा हमको? बस इतना बता दीजिए, फिर हम चले जाएंगे क्योंकि मुझे 1 बजे एक मीटिंग में जाना है। बॉडी शेम क्या होता है? बच्चियाँ बताइए आप लोग, व्हाट इज बॉडी शेम? Of course, this is yes. अगर किसी को कोई गोरा है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का रंग साफ नहीं है, किसी हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, ये हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम नहीं चाहते थे गोरे होना, ये जेनेटिक है। हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। अब उसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमारी क्या प्रॉब्लम है? कोई बच्चा कोई अगर मोटा है, ठीक है, एक्सेसिव पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा खिला देते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, फिर उनसे कहते हैं आप दुबले हुई हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पेरेंट्स खिलाते हैं बहुत बचपन में खाना, और जो 12 साल से पहले जिनको खूब सारा खिला दिया जाता है वो बड़ी मुश्किल से दुबले होते हैं, बहुत मुश्किल से। तो अब बेचारे पहले आप लोगों को मोटा बैठ जाते हैं, हाँ आप दुबले हुई हैं, दौड़िए, ये करिए, वो करिए। तो बात मेरी सिर्फ इतनी है, स्पेशली बॉयज से, लड़कियों से भी कभी किसी का मजाक मत करो। हम सब भगवान की दी हुई इनायत है, हमारे हाथ पाँव आँख हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ बॉडी कि हमको किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि जिंदगी कब आपका मजाक उड़ाइए आपको खुद नहीं पता। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। चतुर्वेदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने ज्ञान वर्धक बातें हमें बताई। मैडम अंजलि सोनी को बुलाना चाहूँगी, क्योंकि वो भी अपनी एक मीटिंग छोड़ करके आई हैं। एक चीफ अकाउंट ऑफिसर है इन उत्तर प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में।
she is posted in Uttar Pradesh Rajya Nirman Nigam, Lucknow. अमृता श्रीवास्तव दीदी ने मुझे बुलाया और वैसे टीचर्स के सामने बोलना अपने आप को आफत बोल देना है, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आती हूँ और हम लोग इतना बोलते नहीं है, कलम चलाते हैं बस। तो आज आपने क्योंकि बोलने के लिए बुला ही लिया है तो कुछ बोलना पड़ेगा। आपने बोला था लैंगिक समानता पर बोलना है, लैंगिक समानता एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लैंगिक समानता है क्या। तो लैंगिक समानता मतलब कि दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या पुरुष और महिला। तो हमें ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमको कहना पड़ रहा है कि भाई हम लड़कियों को भी समानता दो। वो इसलिए कि प्राचीन काल से, जैसे अथर्ववेद में कहा गया है कि लड़की जब होती है तो वो पिता के अधीन है, युवावस्था में पति के अधीन है और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। तो ये हमारी एक इस तरीके की संस्कृति चली आई है जिसमें ये माना गया कि स्त्री शारीरिक रूप से और शायद मानसिक रूप से भी कमजोर है, इसलिए उसे पुरुष की अधीनता की जरूरत है। लेकिन इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, विदेशी आक्रमण रहा हो या उस समय की कोई सामाजिक व्यवस्था रही हो, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसा कि अभी उपमा मैडम ने बोला था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, तो संविधान में ये स्पष्ट प्रस्तावना में ही कह दिया गया कि सभी लोग समान हैं, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। यदि किसी काम के करने के पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो स्त्री को भी 100 रुपये मिलेंगे। यदि शिक्षा का अधिकार पुरुष को है, बालक को है, तो बालिका को भी है। लेकिन आज 75 साल बाद भी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ तो धार्मिक कारण है, जैसे कह सकते हैं कि आज भी एक व्यवस्था है कि जब डेथ हो जाती है, डेथ के बाद श्राद्ध बेटा ही करेगा। आज भी एक मानसिक रूप से एक हमारे मन में विचार रहता है कि वंश तो पुत्र ही चलाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये मान्यता चेंज हो रही है, पर चेंज होने में अभी बहुत समय लग रहा है, क्योंकि आज भी अगर हम अपना इंडेक्स देखें, एजुकेशन इंडेक्स देखें, तो यदि पूरे भारतवर्ष का देखें तो 86% मेल एजुकेटेड हैं, तो उसके समक्ष महिलाएं केवल 64% एजुकेटेड हैं। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक महिलाएं नहीं आगे आ पा रही हैं? इंटर में आप जब इंटर के रिजल्ट आते हैं, हाई स्कूल के रिजल्ट आते हैं, तो आप पढ़ेंगे पेपर्स की हेडलाइन कि लड़कियों ने टॉप किया, लड़कियों ने इतने बाजी मारी, लड़कियों ने इतना परचम फहराया, लड़कियां इतना परसेंट आई। लेकिन वही लड़कियां क्यों नहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच पाती? शायद उसके पीछे एक कारण विवाह भी है। जैसे ही लड़कियां 18 साल, 19 साल, 20 साल की हुई, पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं, और शादी एक बार हुई तो आप घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये एक सामाजिक कारण है। और इसी तरीके से कई कारण हैं। जागरूकता का भी अभाव है। जागरूकता जैसे जब तक माता ये नहीं सोचेगी कि मैं तो अनपढ़ थी, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अनपढ़ ना रहे, जब तक इतनी जागरूकता मदर्स में नहीं आएगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक परिवार आगे बढ़ता है, परिवार समाज का की एक यूनिट है। पहले परिवार, जब बहुत सारे परिवार मिलकर के एक मोहल्ला बना, मोहल्ला मिलकर के बहुत सारे मोहल्ले मिलकर एक गांव बना, गांव से फिर शहर बना। तो जब परिवार ही नहीं शिक्षित होगा तो मोहल्ला कहाँ से शिक्षित होगा, और फिर गांव और शहर और फिर प्रदेश नहीं शिक्षित हो सकते। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ी थी, लेकिन उनका एक था कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। उसके लिए यदि हमें ट्यूशन भी जाना होता था तो वो हमारे साथ जाती थी, क्योंकि उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। पढ़ाई के बाद
शाम में आप ट्यूशन करने जाओ तो लौटते समय रात हो जाती थी, तो वो शी यूज्ड टू कम विद अस, और वहाँ वो बाहर वेट करती थी, जब हमारी कोचिंग खत्म होती थी तो हमारे साथ आती थी। तो इतना तो एज ए मदर, जब आप भी मदर बनोगे, आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा। और जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको इतना सपोर्ट अपने घर में करना पड़ेगा, तभी ये जो हम लैंगिक समानता जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने से और बताने से कोई चीज़ दूर नहीं होती, क्योंकि ये केवल इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, शाम तक जाके आप 2-4 सेंटेंस हो सकता है कुछ याद रखो, कल सब भूल जाओगे, कल नहीं भूले तो 2 दिन में तो भूल ही जाओगे। तो ये कोई एक चीज़ की एक दिन की चीज़ नहीं है, इट इज़ एक ये रेगुलर प्रोसेस है जिसको आपको जीवन में लाना है। आज सवेरे मैं पेपर पढ़ रही थी, तो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बारे में जो निर्णय लिए जाएं, उसकी जो कमेटी बने, उसमें यूक्रेन की महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मीनिंग देयर कि आपकी समस्या तो आप ही समझते हो ना, लड़कियों की समस्या लड़कियां समझती हैं, महिलाओं की समस्या महिलाएं समझती हैं, और बुढ़ापे की समस्या बूढ़ी औरतें भी समझेंगी। इसी तरीके से पुरुष अपनी समस्या समझेंगे। तो जब तक कोई भी कमेटी बनेगी किसी भी विषय से रिलेटेड, उसमें जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो आपके व्यूज वहाँ कौन बताएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? कि जब कोई भी कमेटी बनेगी, तो उसमें जब आपका प्रतिनिधित्व होगा, तभी तो आपके व्यूज वहाँ तक पहुँचेंगे। जब आपके व्यूज होंगे, बाकी 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, तो हो सकता है उनको लगे हाँ कहीं तो ये सही नहीं है, तो इसको भी इसमें डालना चाहिए, या ये काम इस तरीके से करना चाहिए। तो यदि जो कारण है उन्हीं को दूर करने के वही उपाय है। यानी कि अगर धार्मिक अंधविश्वास है, तो धार्मिक अंधविश्वास को छोड़िए। श्राद्ध करने की ऐसी, हालांकि थोड़ा चेंज हुआ है, अभी कोरोना में बहुत डेथ होती थी और बहुत टीवी पे भी हम लोग देखते थे, तो कई बार कि उस तरीके की दोबारा कोई मिसफॉर्चून ना हो। लेकिन हमने देखा कि लड़कियां भी अब दाह संस्कार में जाती हैं, लड़कियां भी दाह संस्कार करती हैं, तो मान्यताएं खत्म हो रही हैं, लेकिन स्लोली। तो आज आप लोग यहाँ इतने लोग हो, इसको एक थोड़ा ये बनाइए, एक निश्चय करिए, क्योंकि बिना निश्चय के नहीं कुछ होना है। एक निश्चय करिए कि नहीं, हमको इस विषय में ये करना है। और महिला समानता या लैंगिक समानता के लिए अगर एक महिला बोले तो उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि एक पुरुष बोले, क्योंकि हमें समानता किससे चाहिए? पुरुषों से। तो महिला तो महिला की बात करेगी ही, लेकिन जब पुरुष महिला की बात करेंगे तब शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये उपायों के साथ गवर्नमेंट तो अपने उपाय कर रही है, जैसे भी मैडम ने बताया, बाकी आप लोगों ने भी पहले बताया होगा, मैं नहीं सुन पाई। तो
अडॉप्ट किया, एक पढ़ी लिखी परिवार है, तो वो अनाथालय का बच्चा भी आकर के परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में उसी परिवार जैसा हो जाता है। एक समय के बाद उसको अगर ना बताओ तो उसे नहीं पता होता कि वो किस व्यक्ति से है। तो मेरा अपना मानना ये है कि यदि उसे पर्याप्त अच्छा वातावरण मिले, शिक्षा मिले, तो वो, क्योंकि बालक एकदम पूरी स्लेट है, उसमें कुछ नहीं है, आप उसको जैसा फील करते जाओगे वैसा वो फील होता जाएगा। तो नौकरी में अवसर की समानता, और इसके लिए गवर्नमेंट अलग से, जैसे आजकल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स हैं या PMT, CPMT के जो एग्जाम्स हैं, उसमें लड़कियों के लिए सीट भी रिजर्व कर रही है, जस्ट बिकॉज कि आपका प्रतिनिधित्व कम है तो आपका प्रतिनिधित्व वहाँ तक पूरा पहुँचे। नीति निर्देशक के संविधान का एक पार्ट है, आप लोग साइंस के बच्चे हो, आपको नहीं मालूम, वो शायद ना मालूम हो। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक दिए हैं, जो गवर्नमेंट उसमें ऐसे रूल बना सकती है जिसको लगे, गवर्नमेंट को लगे कि ये डिप्राइव्ड है, ये क्लास डिप्राइव्ड है, तो उसके लिए वो विशेष कानून बना सकती है। तो इस तरीके से करके हम उनको शिक्षा के द्वारा लैंगिक समानता एक तरीके से ला सकते हैं। उसका लाभ क्या होगा? मान लीजिए हम लोग बात तो कर रहे हैं कि लैंगिक समानता होनी चाहिए, ऐसे कि इस वजह से है, इस वजह से हम दूर कर सकते हैं कि ये कारण से लैंगिक समानता लाई जा सकती है। उसका लाभ क्या? लाभ ये है कि एक समाज में आधी आबादी तो महिलाओं की है, इन ब्रॉडर टर्म्स मान लीजिए 1000 पे 2001 की सेंसस के हिसाब से 933 महिलाएं, 2011 के हिसाब से 943 हो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो लगभग आदमी है। हालांकि ये इतना नहीं होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, 1000 पे 1000 होना चाहिए, पर थोड़ी कम। दैट टू एक देश में जहाँ दो जेंडर हैं, महिला और पुरुष, और केवल पुरुष काम कर रहा है और महिला नहीं काम कर रही है, तो आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से तो समृद्धि अपने आप कम हो जाएगी। 2 परिवार हों जिसमें एक में दोनों पति पत्नी कमाते हों, एक में केवल पुरुष कमाता हो, तो निश्चित रूप से जहाँ दोनों कमा रहे हैं वो लोग अच्छी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ही होगी। तो या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, जब 2 पटरियाँ हैं तो दोनों बराबर से चलेंगी तभी ट्रेन चलेगी। अगर एक पटरी नहीं चलेगी, एक स्टिल है, एक पे ट्रेन तो नहीं चल पाएगी। तो ये इसके फायदे हैं, और फिर उससे और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन दोगे, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दोगे तो वो और उन्नति करेंगे, वो आपसे अच्छी स्थिति में जाएंगे। वो जब और अच्छी स्थिति में जाएंगे तो वो हो सकता है टैक्स पेयर बने, तो गवर्नमेंट को भी उससे टैक्स मिलेगा, उससे या वो कोई बिजनेस करें तो 2-4 लोगों को वो नौकरी देंगे। तो इस तरीके से अगर सब लोग करेंगे तो पूरा देश, अल्टीमेटली पूरे देश की खुशहाली आपकी समानता में नहीं होती। ये केवल आपकी अपनी समानता नहीं है, ये पूरे देश का एक इंडेक्स ऊंचे जाने के बाद। तो इस तरीके से मतलब आप जो है ये इसके फायदे हैं, इसलिए ये सब करना चाहिए। सरकार द्वारा प्रयास आप लोगों ने अभी बहुत सुन ही लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर आपका मातृत्व लाभ, इतना गवर्नमेंट कर रही है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको फ्री में इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिससे कि जो उनकी बेटी या बेटा पैदा हो वो निरोगी पैदा हो। सुकन्या समृद्धि योजना, माने बेटी पैदा हो तो उसका तुरंत खाता खोल दीजिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है। तो इस तरीके से माने गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है। 1994 में भ्रूण हत्या पे 94 में रोक लगती थी, कानून है, लेकिन आज भी हो रहा है। उसको पास्को के अंदर ले आया गया है, माने अगर कहीं कोई इसकी शिकायत कर दे तो सीधे जेल है, विदाउट जमानत, उसमें जमानत भी नहीं मिलती, लेकिन दैट तो अभी भी हो रहा है। तो मेन चीज़ ये है जागरूक होने कि आप जब जागरूक होंगे तो कहते हैं ना कि घर, अगर आप जागरूक हैं तो घर में चोरी नहीं होगी, और अगर जागरूक नहीं है और ताला भी खुला छोड़ दिया तो चोर तो फिर आएगा ही आएगा। तो सेम स्थिति यहाँ पे है कि अगर आप जागरूक नहीं है तो
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और समाधान तो पुरुष के पास है और क्यों? क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है ना। हम तो अभी पढ़ना भी नहीं शुरू किए। माने मेरी मदर और मैं समझती हूँ अमृता दीदी की मदर तो खैर प्रिंसिपल थी, तो इनकी तो बात छोड़ दीजिए, पर मेरी मदर वाली जो पीढ़ी थी वो बहुत कम 9-10 पढ़ लिया तो मतलब बहुत पढ़े हुए हैं। हम लोग MA PhD ये सब किया। अब हमारी जनरेशन की जो बच्ची, हमारे जो बेटे बेटी हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, विदेश में जाके भी पढ़ रहे हैं। तो और पुरुष कब से पढ़ रहा है? पुरुष तो सदियों से पढ़ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ने से ही वो चीजें आ रही हैं। नहीं, पढ़ने से तो ये तो मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा जो है आपको तार्किक बनाती है और शिक्षा आपका जो विचार करने का वो है एक और वो बहुत विस्तृत कर देती है। जब किसी चीज पे हमको निर्णय लेना हो तो उसके लिए हमारे पास विचार भी तो होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो पता होने चाहिए। अनुभव के आधार पे वो निर्णय लेते हैं कि हमारे पास अनुभव ज्यादा है। मैम ऐसा तो नहीं possible नहीं, अनुभव नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके घर में आपके पिता होंगे और आपका भाई होगा, तो जो पिता का अनुभव है और जो उससे आपको जजमेंट मिलेगा और जो भाई का अनुभव है उससे जजमेंट मिलेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। जस्ट बिकॉज कि उनका अनुभव ज्यादा है, उनका वो तजुर्बा तो काम आता ही है। तजुर्बा हमेशा, अनुभव हमेशा काम आता है। और वो कहते हैं ना कि उन्होंने समाज देखा है, उनके बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो मुझे नहीं मालूम, आपके निश्चित रूप से आपके मन में कोई एक विचार होगा जो आपके घर के आसपास हुआ होगा, उससे रिलेटेड आपका है कुछ, लेकिन ये कहीं हम इसमें खाई नहीं, हाँ जी, हम इसमें कहीं खाई नहीं बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरे अपने परिवार का की मैं बात बताऊँ, क्योंकि अब आपने ये जिक्र कर ही दिया, तो मेरी शादी हुई 1990 में और उसके बाद 1992 में मैंने BCS किया और एवरीबडी सपोर्टेड मी। मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे अपने मदर फादर ने, सबने मुझे सपोर्ट किया। और जब मेरा BCS में सिलेक्शन हुआ तो मेरे 2 बच्चे थे, एक 6 महीने का था, एक 4 साल का था। तो उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ जस्ट बिकॉज दे हेल्प मी। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह सब लोग खराब हैं, नेवर, लेकिन हम पीछे हैं क्योंकि हम उतने जागरूक भी नहीं हो रहे। मेरा तो अपना मानना ये है, आप उतना पढ़ो, आप उतना कॉम्पीट होकर के आओ, आपके पेरेंट्स आप या फिर जो हमारी इसकी मदर्स हैं, ये क्योंकि घर कौन चला रहा है? घर महिला चला रही है। उसको देखना है ना कि यदि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसकी बेटी को भी पढ़ने देगी, और यदि मेरा बेटा बिगड़ रहा है तो बेटा एक दिन में रेपिस्ट नहीं बन जाता। बेटे ने जब पहला कदम गलत उठाया तभी अगर माँ ने उसको टोक किया होता तो वो रेपिस्ट ना बनता। तो ये अल्टीमेटली मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, माने महिलाओं की जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे वो चोर बने, डाकू बने, डकैत बने, कुछ भी बने, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनता है। और जब वो पहला कदम उठाता है तो माँ को इतना ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि वो उसको उसी दिन समझाए कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है, ये रास्ता गलत है, ये ऐसे। तो बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे, आप लोगों ने शायद ना सुनी होगी। एक लड़का पहली बार एक पेंसिल चुरा के लाया, उसकी माँ ने उसका बैग देखा और उसको कुछ नहीं रोका। दूसरी बार वो पेंसिल बॉक्स चुराया, फिर नहीं चुराया, ऐसे करके, और उसकी माँ उसको चुपचाप रखती थी। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे एक बड़ा चोर बन गया, और जब बड़ा चोर बन गया तो एक दिन उसको राजा ने मृत्युदंड दिया और चौराहे पे उसको सजा दी जानी थी। तो जब सजा दी जानी थी, फांसी लगाई जानी थी, तो उससे कहा गया कि भाई आप आपकी इच्छा बताओ। तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ का कान चाहिए। तो सब लोग चौंक गए कि भाई माँ का कान चाहिए, क्या मतलब? कि हाँ हुजूर, मुझे अपनी माँ का कान चाहिए, क्योंकि यदि मैं पहले दिन जब मैंने पेंसिल चुराई थी उसी दिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया होता तो मैं ये काम ना करता। मैं जब भी कुछ लेके आता
सारी बातें हो गई और मैं क्योंकि मीटिंग वहाँ छोड़ के आई हूँ वहाँ मुझे वापस भी जल्दी जाना है, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ और बैठती और कुछ आप लोगों की और भी समस्याएं या कुछ और होता तो मैं उसको सुनती और समझ आप लोगों से भी वो समझती, लेकिन सॉरी, कभी नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू। थैंक यू अंजलि सोनी, आपने बहुत सारी बातें बच्चों को बताई। मेरे हिसाब से सोनम तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं संशय? सोनम का सभी तरह हो गया है। महिला ने कुछ बोल दिया। आई थिंक आपको कुछ जल्दी रहा है ना। बच्चे हाँ, नहीं आप अपना बताइए, मैं हाँ चाय नहीं चाय नहीं पी के देती। थोड़ी देर के लिए भी प्रोग्राम रोका जा रहा है ना, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, इधर बैठक को छोड़ के आते हैं। रिक्वेस्ट I request Professor Alisha to come here and give thanks to you. Respected dignitaries in the dais, the Dr. starts with giving a vote of thanks. क्योंकि दोनों चीज होती है, थैंक्स भी देना तो बोलना भी उससे। मैं बोल I would like to thank Sonima, संजीव सोनी for sparing a time, मीटिंग के बीच से आके यहाँ पर मुझको enlighten किया। I would like to thank Dr. Vikramnath Chaturvedi, who is not here right now, but she also spared the time and last moment मुझसे बताया कि उनको बोलना she came here. Dr. Arun Sethi जो contribution है इस program that's immense, and most of all I would like to thank शक्तिमान of this event, मधुरिमा लाल। जिस तरीके से ये मिशन शक्ति 3 में लगी नहीं और मिशन शक्ति 4 में अभी तक लगी हैं, मुझे चैन से नहीं बैठने देती। हर दिन आ जाती मेरी शक्ति सब है, कुछ भी करते हैं सामने चीजें। बहुत अच्छे से I would like to thank her for her efforts in all these things. And before I conclude, एक दो चीज़ें मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ जो टॉपिक चल रहा था। अब एक जो आपने पॉइंट बताया कि आजकल कोरोना के टाइम में महिला बेटियाँ भी अंतिम संस्कार वगैरह करने लगी, ये आपको दिख रहा है। वैदिक पीरियड में ये था, क्योंकि फॉर्चुनेटली आई एम मैरिड टू अ लेडी हु हैज डन अ रिसर्च ऑन दिस एरिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू संस्कृत लिटरेचर, एंड उनसे जो मेरी बातचीत होती रहती है, महिला को जो शक्तियाँ थी या जो कुछ उनके राइट्स थे, आप सोच नहीं सकते कि ऐसी सोसाइटी में हम लोग रहते थे कि जहाँ पर शी हैड ऑल द राइट्स। हवन आजकल आप कहेंगे हवन लेडीज नहीं कर सकती, मंदिर में लेडीज नहीं जा सकती, बहुत सी चीज़ें आप आजकल सुनते हैं। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। जिस तरीके से मेल्स पूजा करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, दे हैड ऑल द राइट्स। कभी आप वेदों को उठा के पढ़ के देखिए तो उसमें देखिए क्या सारी चीज़ें किस तरीके से दे रखी, जो राइट्स थी। ऐसा नहीं है कि और ये जो कुछ भी चेंजेस आपको देख रहे हैं, चाहे हमारे पर्दा की बात है, पर्दा पहले था नहीं। अभी आजकल हम कहते हैं पर्दा होना चाहिए, सर पर पल्ला होना चाहिए, और तो इसी तरह नॉट देयर इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी थी ही नहीं। ये मिडिवल पीरियड के और कुछ उसमें ये सारे चेंजेस आए। हम आया जैसे आप लोग देखिए, छोटी सी बात है, शादी यूजुअली रात के टाइम होती है, हम लोग के यहाँ शादी हमेशा दिन में होती है। पहले क्या वेद उठा के देखिए दिन के टाइम होती थी, कहीं कभी वो नहीं। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी सब चीज़ें चेंज हुई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ गई से। तो ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी कुछ महिलाओं को पहले कम था, अब ये है कि वो क्योंकि डाउन हो गई है तो गवर्नमेंट के सब एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं क्या पूरा फिर से ऊपर आने की। तो वो तो ठीक है, धीरे धीरे कर मानसिकता बदलेगी और वो चीज़ आएगी जरूर।
और अगर ये कहा जाता है कि फीमेल्स आर द वीकर सेक्स, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना कर दीजिए कि अगर बच्चा पैदा करने का ऑप्शन मेल्स को दे दीजिए, तो देखिए पॉपुलेशन पूरा कंट्रोल हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने कहा ना 6-7-8 किसी ने किया था, करके देख, अगर रिवर्स होगा एक के बाद दूसरा कोई नहीं करेगा। ये सब चीजें क्यों है? फीमेल्स आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स, उनका बैकिंग अगर है तो आदमी लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं। If you don't have the backing, that causes the problem. Mentality आपको चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स ठीक है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना अलग बात है, that has to be there. But you need a support, solid support from female counterpart to achieve it. So thank you very much to all the staff members and all the PGs, all the students of the department for making such a nice contribution, nice posters and everything. Thank you very much. We'll stop here. तो मैं आपको जाना है तो थोड़ा सा उसके बाद तो किसी को दोनों का कुछ बोलना बाकी है ना? कितनी देर तो है आपका? कितनी 2-2 मिनट? अगर 2-2 मिनट है तो आकर बोल जाइए तब फिर कंक्लूड। कम 2-2 मिनट बोल लेंगे ना, 2-2 मिनट ही बोल, बस 2-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी जाके बोलो। ज्ञानदायी सरस्वती विराट ब्रह्म स्वरूप अक्षरों अन्नपूर्णा धरती माता श्रद्धेय विभागाध्यक्ष महोदय, आगंतुक महानुभाव एवं प्रिय गुरुजन, आज के इस पावन अवसर पर हम लोग मिशन शक्ति के तहत इस जगह पे एकत्र हुए। इसमें मैं दिव्येंद्र कुमार सिंह अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। लैंगिक समानता है क्या, पहले इस बारे में हम लोग विचार करते हैं। लैंगिक समानता वह अवस्था है जब सभी मनुष्य अपने जैविक अंतरों के बावजूद सभी अवसरों, संसाधनों आदि के लिए आसान और समान पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, यह हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। वैदिक काल में गार्गी, अपाला, लोकोमुद्रा, घोषा आदि भी दूसरी महिलाएं हमारे समाज का गौरव बढ़ाती हैं। लेकिन परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मध्यकाल, वर्तमान काल आते आते महिलाओं की दशा निरंतर चिंतन का विषय बनती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नारीवाद तथा महिलाओं की मुक्ति आंदोलन ने महिलाओं के आधारों की मान्यता के लिए आंदोलनों का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र जैसी अनेक एजेंसियों ने अन्य लोगों के एक समूह के अन्य लैंगिक समानता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बहुत कुछ किया। अगर उदाहरण की बात करें तो यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वलिटी में यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित की गई। इन्होंने संघ वर्ष 2015-20 में जेंडर एक्शन प्लान 2016-2020 नामक एक पेपर भी प्रकाशित किया था। भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में के रास्ते में कई अड़चनें हैं। भारतीय मानसिकता गहरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित है। लड़कों को उन लड़कियों की तुलना में अधिक मूल्य दिया जाता है जिन्हें सिर्फ एक बोझ के रूप में देखा जाता है। इस कारणों से लड़कियों की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो फिर से भारत में लैंगिक समानता के लिए एक खतरा है। एक समान समाज महिलाओं को उनकी मजबूत आवाज को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा और इससे यह मान्यता खत्म होगी कि केवल पुरुषों के पास ही शक्ति होती है। लैंगिक समानता एक मौलिक अधिकार है जो एक दूसरे के बीच सम्मानजनक रिश्तों से भरे स्वस्थ समाज में योगदान देती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित विभाग के विभागाध्यक्ष, हमारे गणमान्य अतिथियों व हमारे सभी प्रोफेसर्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जो एकत्र हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विभाग के विभागाध्यक्ष व कोऑर्डिनेटर में अमृता मैम का, जिन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया। मैं आज हम लोग जो एकत्र हुए हैं, मैं मानता हूँ कि महिलाओं की स्थिति में बहुत सारे सुधार हुए हैं,
लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार होने बाकी हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार होना अभी भी बाकी है। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करके मैं केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित करना चाहूँगा और केवल एक स्लोगन के बाद में अपनी बात को विराम करूँगा। वो स्लोगन है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हम सब इस स्लोगन को एज ए स्लोगन नहीं, एज अ विचार के रूप में अपनाएं, ताकि इस कार्यक्रम को कराया जाना सफल हो सके, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और केवल एक लाइन के साथ मैं इस बात को विराम करूंगा कि नारी का जो हम नारी की शक्ति की बात करते हैं, वो नारी की शक्ति का परिचय केवल एक ही लाइन जो टॉल्स्टॉय ने कही थी कि आप मुझे 60 अच्छी माताएं दीजिए, केवल आप मुझे 60 अच्छी माताएं दीजिए, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो ये बात परिचय कराने की नारी की बहुत बहुत धन्यवाद।